you see any contribution from my side into your learning, please do subscribe and share these videos to your friends so that it will help me to make more such videos. Thank you so much and have a so welcome to this statistics series. मेरा नाम राहुल है और इस statistics series में हम लोग एक another descriptive statistics के बारे में बात करने वाले हैं, that is called median. Okay, for median we have this particular data set and median क्या होता है? Median is basically हम लोगों के पास जो data set होता है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद व्हाट वी डू, वी फाइंड द सेंटर्ड और मिडिल, जो भी मिडिल का पोजीशन का जो एलिमेंट होगा जो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन. ओके, हाउ दिस मीडियन वर्क्स. ओके, अगर आपको किसी भी डेटा सेट से मीडियन निकालना है, सो लेट्स सपोज मेरे पास nth ऑब्जर्वेशन है एंड दैट nth ऑब्जर्वेशन इज ऑड. ओके, तो मुझे उसका सेंटर निकालना है. तो सेंटर निकालने के लिए व्हाट वी विल डू n+1 by 2th ऑब्जर्वेशन जो होगा that will be the median for that particular record. Let's suppose if we have some record of 11 observation and then you need to find the element, then what you will do, you will add +1 to that odd observation and divide by 2, means 6th observation will be the median for that particular data set. Okay, similarly for eventh observation what we will do, क्योंकि even observation we need to take two different observations. Okay, n by 2th ऑब्जर्वेशन एंड n by 2th plus 1 ऑब्जर्वेशन, ये दोनों ऑब्जर्वेशन को लेने के बाद उसका सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, देन वी विल गेट द मीडियन. नाउ आई हैव द सेम डेटा सेट, मेरे पास एक डेटा सेट है एंड सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू विल अरेंज दिस डेटा सेट. सो यहाँ पे भी देख रहे हो आप कि I have arranged this data set like 1 1 2 2 3 3 and so on. And once I have arranged this data set, I need to check कि मेरे पास कितने number of observation है. There are 13. Like for this, the observation is odd and the number of observation is 30. Now, if I need to find and median for that, what I need to do? 13th observation के लिए what we will use the first formula, that is n by 2th. We will use this formula and this will be the n by 2th, n+1 by 2th observation will be the median. Okay, so it is a straight and simple approach for finding the median. It is a more difficult to implement the same using SQL. So we will see how we are gonna implement this median using SQL. So now we are going to implement this particular median using SQL. Okay, so यहाँ पे मेरे पास एक data set है. Okay, that is for employees table and इस employees table data set में I have data for 3 different departments. Like I have data for finance, then I have data for human resources and similarly I have data for IT. Now what I need to do, I need to find median salary for the employees department wise. मतलब department wise median salary क्या क्या है. Okay, दिस विल बी द आउटपुट, जहाँ पे मुझे फिनेंस के लिए आई विल गेट 2 different सैलरीज, देन ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए आई विल गेट 2 different सैलरीज एंड इसके लिए आई विल गेट 2 different सैलरीज. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू implement this particular median. Okay, now we are going to find this median using 2 different ways. Okay, एक पहला तरीका क्या है, we will be using the Windows function. Okay, so let's suppose I'm selecting data from this particular table, that is select star from. so मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे सैलरी को एक एक करके रो नंबर दे देता हूँ और इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गिव अ रो नंबर. सो इसके लिए एक विंडोज फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रो नंबर, और ये क्या करता है, ये रो नंबर बेसिकली आपको सारे रो के सामने न्यूमेरिकल सीक्वेंस ऑर्डर में एक रो नंबर दे देता है, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड मुझे करना क्या, ये रो नंबर किसके बेसिस पे देना है, मुझे रो नंबर देना है और पार्टीशन करना है कि आईटी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहे, एंड जैसे ही फिनांस है इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, सो व्हाट आई विल डू द पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट एंड ऑर्डर बाय सैलरी, ASC. सो मुझे, क्योंकि हम लोग हमेशा मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर रखते हैं ऐसे, एंड आई एम गिविंग द नेम एज RN, रो नंबर. ओके, नाउ मुझे एक और चीज क्या चाहिए, मुझे हर एक डिपार्टमेंट में कितना मैक्सिमम रिकॉर्ड है ये भी चाहिए. तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं
मैं चेक कर पाऊंगा। लेट्स सपोज अगर मेरे पास मैक्सिमम रिकॉर्ड 11 है तो मैं चेक कर पाऊंगा, अगर मेरे पास 11 रिकॉर्ड है तो मैं ये मेरे को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की तरह मैं उसको ट्रीट करूंगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू कंपेयर कि जो भी n/2+1 रिकॉर्ड होगा वो मुझे ला के दे दे। आई एम गोइंग टू यूज अनदर विंडोज फंक्शन दैट इज कॉल्ड काउंट, एंड वी आर गोइंग टू काउंट कि कितने ऑब्जर्वेशन है एंड ओवर, एंड मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू पार्टीशन इट। मुझे कोई भी ऑर्डर, आई जस्ट वांट टू टेक द डेटा। ओके, सो मैं पार्टीशन करता हूँ एज count rn, and if I execute it, here you could see that I am getting the row number। मुझे रो नंबर तो मिल ही रहा है 10 तक। मैक्सिमम काउंट क्या है, सो देखोगे फिनेंस के लिए द मैक्सिमम काउंट इज 10, इसलिए रो नंबर काउंट 10 आ रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी मैक्सिमम काउंट इज 10 ओनली। ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कीप इट inside a CTE table, that is with CTE as under brackets, एंड जब भी आप लोग कोई CTE टेबल को स्टार्ट करते हो तो उसको सेमीकोलन से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दीज डेटा। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मुझे ऐसे RN चाहिए, आई वॉन्ट टू टेक दोज RNs विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये ऑड है तो विच विल बी बिटवीन, मतलब n/2+1 ऑब्जर्वेशन और n/2 ऑब्जर्वेशन के बीच में, ये दो रिकॉर्ड मुझे चाहिए। So what I'm going to do, I'm going to use a where clause where Rn is between count Rn divided by 2 and count Rn divided by 2 plus 1। और अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपको दिखेगा कि मुझे फिफ्थ सिक्स रिकॉर्ड आ रहा है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द मीडियन बेसिकली जब भी ऑड रिकॉर्ड्स आए तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका अगर ऑड रिकॉर्ड आए तो ये दोनों का एवरेज मिल जाए। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको एक अनदर CTE टेबल में डाल सकता हूं, कॉमा डाल के विथ CTE एंड कीप इट एज CTE2 एज, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस CTE। तो CTE को यूज करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड आई विल गेट द एवरेज। अब मैं एवरेज निकाल लेता हूं, सो एवरेज सैलरी from CTE, and if I execute it now, here you could see that मुझे oh shit, it should be grouped by department। okay, and अगर मैं इसको अब execute करूँ तो दिखेगा कि finance के लिए the median is 91500, human resource के लिए the median is 7750, and IT के लिए the median is this thing। okay, and थोड़ा सा मैं इसको clear कर रहा हूँ, that is इसको रिकर्सिव CTE भी बोलते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव CTE, जहाँ CTE का यूज करके मैंने एक और CTE बनाया कॉमा डाल के। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकर्सिव CTE। नाउ देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड परसेंटाइल काउंट, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड मीडियन। सो व्हाट यू कैन डू, आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग कॉपी पेस्टिंग द कोड हियर। ओके, एंड मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फाइंडिंग, let's remove this distinct। okay, just keep it here star comma department, और if I execute it, here you could see that ये क्या करेगा कि हर एम्प्लॉइज के सामने वो क्या करेगा, इट विल चेक कि बीच का सबसे सेंटर्ड पोजीशन वो सैलरी लेगा, और उस सैलरी का जो सबसे सेंटर वाला डेटा रहेगा वो ला के दे देगा, दैट इज 91500। ये डेटा लेके आएगा 91500, एंड सिमिलरली वो विद इन द ग्रुप। अब ग्रुप कैसे डिसाइड हो रहा है, ग्रुप इज बीइंग डिसाइड यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्टीशन कीवर्ड। सो मैं फिनेंस के लिए एक ग्रुप बना दिया, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक ग्रुप बनाया, एंड इसको ऑर्डर कर दिया यूजिंग सैलरी, क्योंकि मुझे मीडियन हमेशा हम लोग असेंडिंग ऑर्डर से फिर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में करके सेलेक्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज SQL टू फाइंड मीडियन, सो दैट अगर आपको कभी भी एनालिसिस करना है यूजिंग मीडियन, यू डोंट गेट कंफ्यूज कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग SQL। okay, so hope you like this video. If you really like this video, or if you see any contribution from my side into your learning, please do subscribe and share these videos to your friends, so that it will help me to make more such videos. Thank you so much and have a